Warm greetings to everyone. Today we will be solving some of the questions of analytic geometry from both UPSC mains and NBHM questions as well. So I have taken all the questions. We will be learning the concepts behind the questions and then solving the questions. So let us start. Now our first question is, what are the equation of the circles of radius is given to us and center is given that it is on x-axis and passing through the point this. So what is our equation of a circle is x minus a square plus y minus b square is equals to r square. Now if it is on x-axis, so certainly our y point is 0, so this b is 0, so we can write x minus a square plus y square is equals to, r is given to us, it is root 17 and then on square. Now this will be x square x minus a square plus y square and it is given to 17. Now it is passing through 0 1, we have to find this a, so we will be doing at x we will be writing 0 minus a square plus, in place of y we will be writing 1 and equals to 17. Now it will be square, so a is our plus minus 4, तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे and we will be getting, now it is x minus, and in place of a it can be plus minus 4, then on square plus y minus b, sorry b means 0 square is equals to 17. So this is the required answer. I hope it is clear to you. Moving towards another question. Now here we have, how did we do, कैसे किया हमने ये a point moves so that the sum of its distance from two fixed point is constant. Any two fixed points are there, so that distance need to be constant. तो वो क्या होगा, तो इसकी एक definition होती है, it's simple the definition only. An ellipse is a curve in a plane surrounding two focal points such that the sum of the distance of 2 points is constant for every point on the curve. So what is the part traced by them? This will be ellipse. ठीक है, ये डायरेक्ट हमारी डेफिनेशन होती है एंड दिस इज़ द डायरेक्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ गया था. सो इफ़ योर 2 points they are constant, so that certainly will be an ellipse. So ellipse is your answer. Now next question is, the point moves so that the line segments joining it to the points given this are perpendicular. Now equation of the path has to be found. ये हम कैसे निकालते हैं? This we will find x minus a we can write, no? y minus b is equals to x minus c upon y minus d. तो क्या करना है, ये दो पॉइंट्स दिए हमको, we have to just put these values. We will be doing x minus 2 y minus 0 is equals to x minus 0 y minus 2. ठीक है, this. Now we have given कि these two are perpendicular, ये perpendicular होंगे, तो जब भी हमारे पास perpendicular होते हैं what we will do, they are simply slopes only, है ना, ये slopes ही है हमारे, तो हम slopes को क्या कर देते हैं,
मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन दे आर इक्वल्स टू -1. m1 m2 is equals to -1. Now on solving this we will be x minus 2 and it is plus y minus 2. ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई. लेट मी राइट इट प्रॉपरली. दिस विल बी x minus 2 plus y into y minus 2 equals to 0. So this is the required equation we will have. Now next question, how many points are there on a curve? Curve is given to us in at which the tangents are parallel to the line. तो अगर हमारा कोई कर्व है, उसका टेंजेंट है, तो इस लाइन के वो कितने पैरेलल होंगे, दैट वी हैव टू फाइंड हेयर. नाउ वी हैव टू फाइंड द स्लोप. सो स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन, डिफ्रेंशिएशन तो करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 8 ऑफ y इंटू वाई डैश इक्वल्स टू 0. नाउ फ्रॉम हेयर व्हाट इज़ योर y डैश? y डैश इज 2x अपॉन 8y मीन्स x अपॉन 4y. ठीक है, ये हमारा स्लोप आ गया है फ्रॉम दिस इक्वेशन. नाउ हमारे पास दूसरी इक्वेशन दी है दिस. नाउ ये स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन क्या होता है? y इक्वल्स टू mx प्लस c. नाउ हेयर m इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो नाउ इक्वेटिंग ऑन बोथ स्लोप्स को, दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम. x अपॉन 4y, तो यहाँ से हमारा x कितना आ गया? 4y. ओके डन इट रॉन्ग. mx, ओके सॉरी, here m is my 1/2. so on equating so my x is 2 equals to y. ठीक है, x की वैल्यू मैं ये आ गई. तो अब मुझे इसके पॉइंट्स निकालने हैं. नाउ पुटिंग दिस x वैल्यू हेयर, तो आई विल बी राइटिंग, आई विल बी गेटिंग 4y की स्क्वायर इक्वल्स टू 1. दिस इज 0 and this is 1 which can't be possible. So how many points are there? There are 0 points. 0 points, कहीं पे भी ये satisfy नहीं करेगा. There are 0 points. Next, now if we have to find whether our lines are intersecting or not, so this is this very long formula we have. ठीक है, थोड़ा 2-3 times we have to just revise it, फिर हमें समझ आ जाएगा. So this is the formula which is responsible to find the intersection points. तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा x1 जो है वो ये होगा, y1 ये है, z1 ये है. x2 जो हमें, देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, x1 is 1, x2 is 2 and x3 is sorry it's y1 ना, y1 is 2 and z1 is 3. For second equation what we have to do, divide this by 6. ये 6 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 3 y माइनस 1 अपॉन 2 एंड इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन 1. तो यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, ये होगा -1, y2 हो जाएगा 1 एंड z2 हो जाएगा 4. ठीक है, और जो डिनोमिनेटर्स में होते हैं वो ABC होते हैं. तो यहाँ तो डिनोमिनेटर में सारा 1 है, तो A1 भी 1 होगा, B1 भी 1 होगा एंड C1 भी 1 होगा. एंड A2 क्या होगा, ये 3 होगा, B2 इज़ 2 एंड C2 इज़ योर 1. ठीक है, नाउ जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज़. ये आपको वैल्यूज़ सारी पुट करनी है इसमें. नाउ इफ़ योर फार्मूला, दिस जो फार्मूला हमारे पास है, अगर ये इक्वल्स टू 0 आ जाता है, देन देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो ये था x2 माइनस x1. ठीक है, x2 हमारा क्या था यहाँ पे,
x2 हमारा -1 था, -1 एंड दिस इज 1। y2 जो है हमारा, y2 हमारा 1 -2 एंड z2 जो था हमारा, z2 इज हमारा 4 -3। ठीक है, a1 a2 a1 b1 और c1 हमारा 1 1 था, a2 जो है हमारा वो 3 था, ये 2 है एंड 1 है, तो ये हमारा आ जाएगा -2 और डिनोमिनेटर में अलग से फॉर्मूला, बट लेट अस सॉल्व फर्स्ट दिस। तो ये आ जाएगा -1, ये 1 1 1 3 2 1। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, तो ये हमारा आ जाएगा -2 1 -2 +1, ये 1 -2 हो जाएगा, 1 है हाँ ठीक है, ये +1, ये आ जाएगा 2 -3, तो ये हमारा आ जाएगा -2 एंड दिस इज़ -1, जो कि ज़ीरो के इक्वलेंट नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई भी नहीं होगा। देर इज़, इफ़ यस देन गिव द पॉइंट, तो आंसर इज़ नो, देर इज़ नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिकॉज हमने जब इसको सॉल्व किया इट इज़ नॉट कमिंग ज़ीरो। नीचे वाली टर्म तो बाद की बात है, पहले हमें ऊपर वाली टर्म देखनी है। ठीक है, तो दिस नीड टू बी ज़ीरो। Now next question is, we have given this equation and it represent an ellipse and these are the eigenvalues. Now अगर हमारे पास ये ellipse होता है तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारे जो हमारे आइगन वैल्यूज होती है, नहीं लिखा जा रहा, ये हो रहा है, चलो, जो हमारी आइगन वैल्यूज होती है दैट विल बी लेस देन ज़ीरो, वो ज़ीरो से छोटी होती है। ठीक है, ये हमारा एलिप्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि दैट नीड्स टू बी ज़ीरो। तो इट मीन्स जो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा, जो हमारा ए डिटर्मिनेंट है दैट इज़ लेस देन ज़ीरो, वो छोटा है, और ये हमारे पास गिवन है। नाउ हमारा जो एलिप्स होता है उसकी इक्वेशन कैसे होती है, इस तरीके से होती है ना, y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमारी λ1 एंड जो λ2 है वो उससे बड़ी है, और हमें निकालनी है मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो जो हमारी मेजर एक्सिस होगी, इसका मतलब यहाँ पे हमारा b जो है दैट इज़ ग्रेटर देन a। ठीक है, तो हमारी सेमी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, 1 अपॉन √λ2, और माइनर क्या हो जाएगी, 1 अपॉन √λ1, बिकॉज ये अगर हमारा देखा जाए तो ये हमारा वर्टिकल एलिप्स बन रहा है। ठीक है, वर्टिकल एलिप्स बन रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी सेमी मेजर एक्सिस होगी, मेजर एक्सिस क्या होती है, ए होती है, एक तरह से 2a होती है, सॉरी। ठीक है, तो सेमी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, और ए डिनोमिनेटर में होता है, तो हमारा ये क्या वैल्यू आ जाएगी, √this, एंड सेमी माइनर जो होगा वो हमारा होगा λ1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी डूइंग। नाउ हमें ये निकालना है कि नॉर्मल टू द स्फीयर वेयर सेंटर इज दिस एंड रेडियस गिवन टू दिस, और एक पॉइंट पे तो एक परपेंडिकुलर लाइन होगी। ठीक है, ये आपका स्फीयर है और ये कोई प्लेन है, और यहाँ से जो लाइन आएगी वो आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। अब ये ऑब्वियसली अब आपका रेडियस है, तो रेडियस ऑलरेडी 5 दिया है, तो इसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स निकालना है। तो वी विल बी चेकिंग आउट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। अगर हमारा आंसर 5 आ रहा है इट मीन्स देयर इज परपेंडिकुलर लाइन, और अगर ये 5 नहीं आ रहा तो इट मीन्स दिस इज फॉल्स। ये हमें यहाँ पे चेक करना है। तो हमारे पास जनरल फॉर्म है। ठीक है, गिवन। नाउ हमारे पास सेंटर्स भी गिवन है, सेंटर इज 1 1 0। नाउ ऑन पुटिंग आउट हेयर वैल्यूज़, यहाँ पे हम वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा r इज़ अवर 5, और ये स्क्वायर रूट है तो मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेती हूँ।
ये मेरा 1 + 1 माइनस डी आ जाएगा। तो डी की वैल्यू मेरी यहाँ से -23 आ गई, माइनस साइन का। नाउ हैव टू पुट वैल्यूज़ हेयर। तो यहाँ पे ये 1 पॉइंट है और यहाँ पे भी ये 1 है, तो 1 × 1 ये मेरा मॉड में 1 आ जाएगा। देन 4 × 3 +12 आ जाएगा। देन 4 × 4 -16 आ जाएगा। और ये -23 था तो ये +23 हो गया। एंड स्क्वायर रूट 1, इसका 1 का स्क्वायर, देन 9 एंड 16, तो 10 26 अंडर रूट 26 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आ रहा है 113 - 16 + 23 अपॉन रूट 26। तो ये मेरा आ रहा है 20 अपॉन रूट 26 मॉड में। इफ़ आई एम डिवाइडिंग इट तो ये मेरा 5 तो नहीं आ रहा है। ठीक है, ये मेरा 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये हमारा 5 नहीं आ रहा। सो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, नॉर्मल नहीं है। सो आंसर इज़ फॉल्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाना है जस्ट, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। आई हैव रिटन इट वेरी क्लियरली कि आपको ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। देन कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू फाइंड कि इनमें से कौन सा जो ग्राफ है दैट विल बी ऑफ बाउंडेड सेट। बाउंडेड होता है कि अगर आपके पास कोई भी ग्राफ है, इट इज़ बाउंडेड, इट हैज़ बाउंड्रीज, बाउंडेड है तो वो बाउंडेड फंक्शन होगा। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें सिर्फ चेक करना है कि इसका ग्राफ क्या बन रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा ग्राफ है दैट इज़ xy = 1। तो इसको अगर मैं ग्राफ बनाऊंगी तो ये मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। ऑब्वियसली y = 1 अपॉन x, तो ये 0 तो नहीं होगा, 0 को ये छोड़ रहा है। एंड इट गोज़ ऑन, ठीक है, ये जाता रहेगा नेगेटिव साइड में भी और पॉजिटिव साइड में। तो आप ये देखो, ये मेरा बाउंडेड नहीं है। दिस इज़ माई नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड। ठीक है, so this is not bounded. Now looking the second one. Now second one जो मेरा ग्राफ है, ये ग्राफ थोड़ा सा टफ हो जाएगा। वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हो। ये जो ग्राफ है ये मेरा थोड़ा सा, देखो आप 0 पुट करोगे, इफ़ यू विल बी पुटिंग आउट 0 तो ये आपका 0 पे ही बन रहा है ऑब्वियसली पॉइंट। ठीक है, अगर आप इसमें 1 पुट करते हो x की जगह तो ये मेरा +y - y², तो इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी। दिस विल बी y - 2 एंड y + 1। तो y की वैल्यू 2 आ गई एंड y की वैल्यू -1 आ गई। तो ये कुछ थोड़ा ऑपोजिट सा ऐसे ऐसे लाइन करके ग्राफ बनेगी। बट ये आप देख सकते हो कहीं से भी ये बाउंडेड नहीं है। अगर इसकी कहीं बाउंड्री ये ऐसे आती ना कि बाउंडेड फंक्शन होता तो सही था, बट ये ऐसा नहीं आ रहा है। दिस फंक्शन इज़ लाइक दिस, ये ऐसे लाइंस बन रही है। सो दिस फंक्शन इज़ ऑल्सो नॉट बाउंडेड, not bounded. So our question was pick out the bounded sets. तो कोई भी इनमें से bounded नहीं है, so there is none. Option is correct. So I hope it is clear to you. Thank you so much.